Hello students, how are you? Hope you are doing good. Okay, so what have we seen till now? Meaning of a budget, purposes of budget, that is objectives of budget. उसके बाद हमने देखा था types of budget. Types of budget was divided into two parts, balanced budget, unbalanced budget. Unbalanced budget में deficit budget and surplus budget. We had also seen the merits and demerits of all types of budget. Okay, so what is today's topic? Accounts of a budget. That is how a budget is prepared, how the transactions are recorded in a budget. All that is the scope of today's lecture. So, as per the accounting principles, every budget has two sides. Of course, we are very familiar with accounting terms of debit and credit. तो यहाँ पर भी accounting के point of view से ऐसी ही दो sides आपके सामने आएगी. First is credit side. We talk about the incomes which are recorded on which side? Credit side. Now, what do you mean by income? All such money that was being transferred from citizens to the government is a part and parcel of whose income? Government's income. So यहाँ पर जो भी सोचना है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है. तुम्हारी मेरी इनकम नहीं. किसकी इनकम? गवर्नमेंट की इनकम. क्योंकि बजट भी किसका है? गवर्नमेंट का है ना. ओके फाइन. उसके बाद डेबिट साइड पे हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? ऑल द गवर्नमेंट expenditures means whatever money government has expended on the citizens of a given nation will be recorded on which side? Debit side. And as per the popular principles of accounts, golden rules of accounts, nominal account का क्या रूल था? Credit all incomes and gains and debit all expenses and losses. तो यहां पर भी हम वही ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि अकाउंट्स को हम चेंज नहीं कर सकते. बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंट्स आर अप्लाइड इन ऑल द फील्ड्स ऑफ लाइफ. ओके, चलिए आगे देखते हैं. ईच साइड इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू मोर पार्ट्स. मतलब डेबिट साइड के भी दो टुकड़े और क्रेडिट साइड के भी दो टुकड़े होंगे. लेट अस सी. करंट अकाउंट which is meant for regular or short-term transactions, that is current expenditures and current incomes are recorded in current account of debit side and credit side respectively. ठीक है, क्योंकि current account दोनों साइड आएगा, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी. And after that you have capital account which is meant for which transactions? Long-term transactions, that is कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल इनकम. दूर की सोचने वाला, दूर के खर्चे, दूर की इनकम, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स आर एप्लीकेबल ऑफ दीज ट्रांजैक्शंस व्हिच आर रिकॉर्डेड इन व्हिच अकाउंट? कैपिटल अकाउंट. ओके, सो एक है शॉर्ट टर्म, दूसरा है लॉन्ग टर्म. एक है रेगुलर खर्चा, दूसरा है वंस इन अ वाइल खर्चा. तो इस पर्टिकुलर स्लाइड में हमने क्या सीख लिया? Accounts of a budget are divided into two sides, debit side and credit side. Debit side सारे expenses, credit side सारी income. Debit side is further having two parts, current account, capital account, and credit side is also having two parts, current account and capital account. Current account is meant for regular day-to-day short-term transactions and capital account is meant for once in a while long-term transactions. Okay, fine. Let's proceed ahead. Government budget कुछ ऐसा आपके सामने आएगा. Credit side will be reflected on the left side and debit side will be reflected on the right side. Now this is slightly different as compared to our routine practice in final accounts. वहां पे हम left side क्या लिखते थे? Expenses. और right side क्या लिखते थे? Incomes. ये कोई ledger account नहीं बना रहे हम. This is a statement, it's a budget. So उसमें उल्टा होगा. Credit side will appear on the left side and debit side will appear on the right side.
all the incomes will appear on the left side, all the expenses will appear on the right side. Okay, let us see credit side का पहला हिस्सा, that is current account, which means current incomes, revenue incomes, regular incomes. तो क्या क्या आएगा उसमें? It consists of direct and indirect taxes. Direct taxes means income tax, wealth tax, gift tax, property tax. Indirect taxes means only one now, one nation, one tax, that is GST, goods and service tax. फिर profits of public enterprises, fees, fines from public utilities. मास्क पहन के नहीं जाते, डंडे पड़ते हैं अलग, ऊपर से 1000 रुपीज का पेनल्टी भी लगता है. परमिशन के बगैर आपने दुकान खोल ली, शटर बंद करके अंदर बैठ के काम कर रहे हो, कस्टमर्स को बुला रहे हो, तो 12,000 रुपए का फाइन पेनल्टी लागू होता है. ऑल मल्टीपल पेनल्टीज विच आर इम्पोज्ड ऑन पब्लिक while they were using public utilities is a regular source of income for the government. क्योंकि रूल्स का पालन करवाना किसका काम है? गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का काम है. और पब्लिक का क्या काम है? इन रूल्स को तोड़ना. तो जैसे ही रूल तोड़ोगे फाइन पेनल्टी भरनी पड़ेगी. तो ये पैसा किसकी जेब में जाएगा? नहीं, पुलिस वाले की जेब में नहीं, गवर्नमेंट की जेब में जाएगा. अपने तो एथिकली बात करेंगे, सच सच बात करेंगे, ऑन पेपर बात करेंगे. ओके, सो डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, पब्लिक एंटरप्राइज के जो प्रॉफिट्स हैं, वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, रेलवे डिपार्टमेंट, ऑल दीज आर पब्लिक एंटरप्राइजेस जिसमें गवर्नमेंट का पैसा लगा है. उससे कोई प्रॉफिट मिलता है तो प्रॉफिट भी किसकी इनकम है? गवर्नमेंट की इनकम है और रेगुलर इनकम है. फीस और फाइन हमने डिस्कस किया. All the receipts and payments are of transactions which are of the current period. Every year ये receipts and payments होंगे. Payment from whose side? Citizen side. And receipt from whose side? Government side. Okay? Because we are recording what? The incomes of the government. Clear? Fine. Now we proceed ahead. Capital account. मतलब कौन सी ऐसी इनकम है जो कुछ सालों में एक बार देखने को मिलेगी, लॉन्ग टर्म इफेक्ट लेके आएगी. लेट अस सी दैट. ट्रांजैक्शंस व्हिच हैव लॉन्ग टर्म और कंटिन्यूअस इंपैक्ट ऑन गवर्नमेंट फंड्स आर रिकॉर्डेड हियर. गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत है तो गवर्नमेंट ने मार्केट में डिबेंचर्स को फ्लोट किया, गवर्नमेंट बॉन्ड्स को फ्लोट किया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को फ्लोट किया, और पब्लिक ने ये सारी सिक्योरिटीज खरीद ली बाय पेइंग मनी. सो द मनी इज गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम सिटीजन्स टू द गवर्नमेंट. नाउ इज दिस अ रेगुलर ट्रांजैक्शन? इट हैपेंस एवरी ईयर? नो. इवन इफ इट हैपेंस एवरी ईयर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन? लॉन्ग टर्म इफेक्ट. गवर्नमेंट ने आज सिक्योरिटी बेची, कल वापस खरीद लेगी, ऐसा नहीं है. ये सिक्योरिटीज लंबे समय के लिए सिटीजन्स के पास रहती हैं और गवर्नमेंट उस पे इंटरेस्ट भी पे करता है. ओके, सो बोरोइंग्स फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द पब्लिक. ओके, क्या गवर्नमेंट के पास खाली हम लोग हैं पैसा बोरो करने के लिए? नहीं, गवर्नमेंट के पास आरबीआई है, सेंट्रल बैंक है, उससे भी वो पैसा बोरो कर सकते हैं. जरूरत पड़ी तो दूसरे कंट्रीज के आगे भी हाथ फैलाएंगे कि पैसा लाओ, वहां से भी वो लोन ले सकते हैं. And over and above all these organizations or countries, we have one institution called as World Bank. So World Bank से भी हम पैसा borrow कर सकते हैं. Don't forget, all these borrowals are for a long period of time. इसीलिए कौन से अकाउंट में आएगा? कैपिटल अकाउंट में आएगा. ओके, नाउ इनकम फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट. देखो लिखा है लास्ट लाइन में. What do you mean by disinvestment? हमने सीखा था चैप्टर 8 में. When you put your money in some business, it is called investment. And when you withdraw that money from that business, it is called as disinvestment. So public enterprises में किसका पैसा लगा था? गवर्नमेंट का. प्राइवेटाइजेशन के तहत, for doing privatization,
what did government do? Pull its money back from the government or public enterprises. That process was called as what? Disinvestment. So government ने अपना पैसा वापस खींचा from what? Public enterprises, जो शुरू ही किसने किए थे? गवर्नमेंट ने अपने पैसे लगा के. नाउ प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ? ओनरशिप गॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर. और ये ऐसे मुफ्त में थोड़ी हुआ है. गवर्नमेंट ने अपना स्टेक पब्लिक को बेचा है, तो गवर्नमेंट के पास क्या आया? पैसा आया. और उस एंटरप्राइज में अब किसका पैसा लग गया? प्राइवेट सेक्टर का. तभी तो प्राइवेटाइजेशन हुआ ना. सो disinvestment is also a source from where government can attract the money, it can attract the fund, it can generate a long term income. Clear? ये disinvestment भी बार बार हर साल थोड़ी होता है, और अगर होता है कुछ सेक्टर्स में तो उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? लॉन्ग टर्म है. उसका जो इंपैक्ट है वो क्या है? लॉन्ग टर्म है. ओके, सो इट इज इंक्लूडेड इन विच अकाउंट? कैपिटल अकाउंट. अंडरस्टूड? चलिए डेबिट साइड पे आ जाते हैं. उसमें क्या लिखा है? सबसे पहला करंट अकाउंट के एक्सपेंडिचर्स. ओके, मतलब ऑल दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर गोइंग टू टेक प्लेस ऑन रेगुलर बेसिस, ईयरली बेसिस, एंड दीज आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ अवर डे टू डे ट्रांजैक्शंस. ओके, लेट अस सी दैट. इट कंसिस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर्स ऑन सैलरीज टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज. गवर्नमेंट एम्प्लॉइज मतलब सरकारी कर्मचारी, उनको क्या पे होता है? सैलरी, पगार. और ये पगार उनको हर महीने पे होता है, रेगुलरली पे होता है. और ये ट्रांजैक्शन की इफेक्ट शॉर्ट टर्म है, बार बार है, लगातार है. ओके, सो इट इज इंक्लूडेड इन विच अकाउंट? करंट अकाउंट. उसके बाद इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन बाय गवर्नमेंट. सो गवर्नमेंट ने लोन बोरो किया था, उस पे हर साल क्या पे करना है? इंटरेस्ट पे करना है, क्योंकि कोई भी आपको लोन फ्री में नहीं देता. एवरी लोन बोरोड हैज एन ऑब्लिगेशन ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट टुवर्ड्स इट टिल यू रीपे बैक द लोन. ओके, पेंशन्स हैं, सब्सिडीज हैं, गवर्नमेंट ग्रांट्स हैं, करंट एक्सपेंसेस ऑन डिफेंस है. सो डिफेंस पे जो भी खर्चा हो रहा है, आर्मी को पालने का, पोसने का, उनकी सैलरी पे करने की, ऑल दैट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ रेगुलर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. सो इट इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड. लेकिन विच अकाउंट? करंट अकाउंट. ओके, पेंशन आपको मालूम है क्या होता है? इट इज अ रिटायरमेंट बेनिफिट एप्लीकेबल टू सीनियर सिटीजन्स आफ्टर दे कंप्लीट देयर गवर्नमेंट जॉब. What is the security available to government employees? That they get government pension even after retirement, so that these people can survive during their old age. Okay, subsidies हमें मालूम है, reduction in taxes. तो ये जो भी आपने आइटम्स इसमें देखी वो क्या है? Money flows from government to the citizens and on regular basis. So it is a part of which account? Current account. Okay, चलिए आगे देखते हैं. कैपिटल अकाउंट, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर्स. दीज आर एक्सपेंडिचर्स हैविंग लॉन्ग टर्म और कंटिन्यूअस इंपैक्ट ऑन गवर्नमेंट फंड्स. एग्जांपल, लोन्स गिवन टू अदर गवर्नमेंट्स, रीपेमेंट ऑफ लोन्स, कैपिटल एक्सपेंसेस ऑन सोशल, इकोनॉमिक एंड डिफेंस एक्टिविटीज. ओके, सो हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने किसी दूसरी गवर्नमेंट को लोन दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने लोकल गवर्नमेंट को लोन दिया. ये लोन देना क्या रोज रोज होता है? नहीं. इट इज हैविंग अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट. सो इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ विच अकाउंट? कैपिटल अकाउंट. एंड मनी गोस आउट मीन्स इट इज एन एक्सपेंडिचर. ओके, उसके बाद रीपेमेंट ऑफ लोन्स. तो लोन बोरो किया था, वो आपकी कैपिटल इनकम में आया क्योंकि पैसा अंदर आया विथ अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट. नाउ द सेम लोन यू आर रीपेइंग मींस मनी इज गोइंग आउट. सो इट इज कंसिडर्ड एज व्हाट? रीपेमेंट ऑफ लोन. एज विच एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर. क्योंकि रीपेमेंट ऑफ लोन भी बार बार लगातार नहीं होता. इट इज गोइंग टू टेक प्लेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. उसके बाद
सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, जैसे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ओके, एजुकेशन पे खर्चा, हेल्थ पे खर्चा, हाउसिंग पे खर्चा, गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म बेसिस पे ये खर्चा करती है, एवरी ईयर करती है। बट ये ट्रांजैक्शंस भले ही हर साल होते हैं, लेकिन हर साल एक ही जगह पे नहीं होते। एक जगह पे खर्चा किया तो वो खर्चा लॉन्ग टर्म इंपैक्ट लाता है, इसीलिए उसको कहां इंक्लूड किया? कैपिटल अकाउंट में हमने इंक्लूड किया है। ओके, सो सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्टअप करने के लिए जो भी खर्चे लॉन्ग टर्म इफेक्ट लेके आते हैं वो इस अकाउंट में शामिल हो जाएंगे। नाउ द क्वेश्चन कम्स, सर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर मींस एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इन पे भी गवर्नमेंट के लॉन्ग टर्म खर्चे होते हैं, तो वो खर्चे शामिल यहां पे किए जाएंगे। एंड डिफेंस एक्टिविटीज, अब डिफेंस में बात को समझो। इफ आई एम पेइंग सैलरी टू आर्मी ऑफिशियल्स, ओके, आर्मी ऑफिसर्स, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ करंट अकाउंट। बट इफ आई एम बाइंग टैंकर्स, इफ आई एम बाइंग मिसाइल्स, if I am buying jets, so all those expenditures are done for a long term, so it should be a part of which account? Capital account. Okay, understood the whole scenario? So government budget आपके सामने है, left side is credit side where you record all the incomes, current account में you record regular incomes, capital account में you record capital incomes which have a long term impact, और राइट साइड में आप करंट अकाउंट में कौन से खर्चे इंक्लूड करेंगे? करंट एक्सपेंडिचर्स। और कैपिटल अकाउंट में कौन से खर्चे इंक्लूड करेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैविंग अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट। ओके, नाउ लेट अस गो अहेड विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट? टाइप्स ऑफ डेफिसिट इन अ बजट। सो ये डेफिसिट हमने अभी क्यों लिया? बिकॉज अकाउंट्स ऑफ अ बजट एक बार आपको क्लियर होगा तो यू नो which items are recorded where, and after that you can perform any calculation which is required for the purpose of calculating either a surplus or a deficit. सरप्लस या डेफिसिट कैलकुलेट करने के लिए मालूम तो होना चाहिए ना कि हमें कहां कहां कौन से आइटम्स में खेलना है। सो टुडे वी हैव सीन अकाउंट्स ऑफ अ बजट, हमें मालूम है एग्जैक्टली व्हाट आइटम्स आर रिकॉर्डेड वेयर, and now by calculating the differences among several items we will be able to calculate the deficit. Okay, अब deficit कब आएगा? when the government presents a deficit budget. याद आया? types of budget, balance, unbalance. unbalance के दो हिस्से थे, surplus and deficit. तो अब ये deficit कौन कौन से प्रकार की है, कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव छुपा हुआ है हर एक डेफिसिट के पीछे, we will see that. Okay, on your screen formula to calculate deficits will appear on the right side and its theory will appear on the left side. आपको लिखना दोनों है। ओके, चलिए, रेवेन्यू डेफिसिट, it represents the difference between revenue incomes and revenue expenses. This shows inefficiency of government machinery. कहने का क्या मतलब है? आपके रेगुलर खर्चे आपकी रेगुलर इनकम से ज्यादा हैं, तो ये तो डेफिसिट आएगा ना। डेफिसिट मींस व्हाट? पेमेंट्स आर ग्रेटर देन रिसीट्स, एक्सपेंसेस आर मोर देन इनकम्स। ओके, सो ये क्या बताएगा कि आपकी गवर्नमेंट उतनी भी काबिल नहीं है कि अपने रेगुलर खर्चों को हैंडल कर सके। दैट इज शोन बाय अ रेवेन्यू डेफिसिट। So now the question comes, what is the formula of revenue deficit? Is equal to revenue expenses minus revenue incomes. Okay? हमेशा जब डेफिसिट कैलकुलेट करते हैं तो पहले एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करो, उसमें से फिर माइनस क्या करो? इनकम्स। सिंस वी नो एवरी डेफिसिट हैपेंस ओनली बिकॉज एक्सपेंसेस आर ग्रेटर देन इनकम्स। ओके, चलिए, नाउ बजटरी डेफिसिट। अब ये क्या होता है, बात को समझो। व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन टोटल इनकम, देन वी गेट बजटरी डेफिसिट. Central government does deficit financing to meet this deficit, and state government borrows more from central government to cover up this deficit. Okay,
सो बजटरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या आएगा? टोटल एक्सपेंसेस माइनस टोटल इनकम्स। ओके, अब नाम ही क्या रखा? बजटरी। तो पूरे बजट में क्या खाली रेवेन्यू, इनकम्स और एक्सपेंसेस है? नहीं, कैपिटल इनकम और एक्सपेंसेस भी तो है। सो यू कैलकुलेट ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ द बजट and you calculate all the incomes of the budget. The difference between them will be budgetary deficit. क्योंकि पूरा का पूरा बजट इसमें आ चुका, तो इस डेफिसिट का नाम भी क्या रखा? बजटरी डेफिसिट। ओके, चलिए, नाउ वी टॉक अबाउट फिस्कल डेफिसिट। इट रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस बिटवीन टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। क्योंकि हमने इनकम में किसको लिया था? बोरोइंग को लिया था। अब बोरोइंग सही मायने में हमारी इनकम नहीं है, क्योंकि ये तो पैसा हमें वापस रीपे करना है ना। सो इट इज नॉट इनकम इन द ट्रू सेंस, इट इज लोन बोरोड। मैंने लोन बोरो किया और मैंने ये पैसा कमाया, दोनों में डिफरेंस है ना। जो पैसा कमाया वो आपका है, जिसने कमाया उसका है, लेकिन लोन बोरोड आपको भविष्य में वापस चुकाना है। तो फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट करते समय हम बोरोइंग्स को शामिल नहीं करेंगे। ओके, एंड एक्सपेंसेस साइड क्या लेंगे? टोटल ही लेंगे। ओके, सो इसकी क्या फॉर्मूला बनेगी? फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू, दो फॉर्मूला है। बजटरी डेफिसिट में आप या तो मार्केट बोरोइंग्स को ऐड कर दो, या फिर टोटल एक्सपेंसेस में से टोटल इनकम माइनस करो, लेकिन टोटल इनकम में क्या एक्सक्लूड कर देने का? मार्केट बोरोइंग को एक्सक्लूड कर देने का। क्लियर? अंडरस्टूड? सो व्हाट इज द फॉर्मूला? बजटरी डेफिसिट में या तो मार्केट बोरोइंग को ऐड करो, या टोटल एक्सपेंसेस में से जब टोटल इनकम माइनस कर रहे थे वो टाइम पे टोटल इनकम की गणतरी में मार्केट बोरोइंग को लेने का नहीं। दोनों तरीकों से आपका आंसर सेम ही आएगा। ओके, अंडरस्टूड? चलिए आगे देखते हैं। प्राइमरी डेफिसिट, इट रिप्रेजेंट्स द डिफरेंसेस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स। ओके, सो प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू व्हाट? फिस्कल डेफिसिट, जो पॉइंट नंबर 3 में आया, माइनस क्या करेंगे? इंटरेस्ट पेमेंट्स करेंगे। अब बात को समझो, अगर आप फिस्कल डेफिसिट में मार्केट बोरोइंग्स नहीं ले रहे हैं, लोन बोरोड नहीं ले रहे हैं, तो उसी लोन पे जो इंटरेस्ट पे हुआ उसको भी नहीं लेना चाहिए ना। तो वो कंसेप्ट किसमें समझाया? प्राइमरी डेफिसिट में समझाया। इफ यू आर एक्सक्लूडिंग द मार्केट बोरोइंग्स, देन प्लीज एक्सक्लूड द इंटरेस्ट पेमेंट ऑल्सो ऑन दोज बोरोइंग्स। सो विद दिस केम अ न्यू डेफिसिट कॉल्ड एज प्राइमरी डेफिसिट। ओके, नाउ द क्वेश्चन कम्स, सर ये अलग अलग डेफिसिट जान के हम क्या करेंगे? If we know these deficits well in advance, we can plan to raise the incomes either from the citizens or we can make arrangements of borrowing. क्योंकि मत भूलना, ये जो बजट है, it is for the next year. It is planning of estimated incomes and estimated expenditures. So if we are able to foresee that expenses are going to be more than incomes, then it will give us good time to be prepared for arranging the funds to meet out the surplus expenses. Okay, understood? That is the reason why we calculate different deficits from different point of view to make proper arrangement of the same. Clear? हाँ, मैं जानता हूं ये कंसेप्ट आपको एकदम क्लियर नहीं हुआ है, इसीलिए हम इसको प्रैक्टिकली एक एग्जाम्पल से समझेंगे। Okay, let us see that. A practical application of formula of deficit through a sample budget. Sample budget means यहाँ पे लिए गए सारे फिगर्स काल्पनिक हैं, इसका किसी भी जीवित या मृत इंसान के साथ कोई लेना देना नहीं है। Just like our movies, all the characters are fictitious. Resemblance with any person living or dead is purely coincidental. Okay, so let us see that sample budget. Credit side, rupees in crores. Revenue incomes में देखो क्या लिखा है?
डायरेक्ट टैक्सेस 1000, इनडायरेक्ट टैक्सेस 3000, प्रॉफिट फ्रॉम पब्लिक सेक्टर यूनिट्स 1000, फिर उसके नीचे कैपिटल इनकम्स है, मार्केट बोरोइंग्स 2000, इनकम फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट 3000, रिकवरी ऑफ लोन 2000। डेबिट साइड पे आप गौर से अगर देखें, रेवेन्यू एक्सपेंसेस, सैलरी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज 2500, इंटरेस्ट ऑन लोन 1500, सब्सिडीज एंड ग्रांट्स 2000, डिफेंस एक्सपेंसेस 1000, कैपिटल एक्सपेंसेस हैं सोशल सर्विसेज पे 2500, इकोनॉमिक सर्विसेज पे 3500, डिफेंस 1000 एंड रीपेमेंट ऑफ लोन्स 2000। सर डिफेंस दो बार आया, डिफेंस रेगुलर खर्चा करंट अकाउंट में, और डिफेंस में टैंकर वगैरह खरीदा वो कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, वो मैंने पहले ही बोल दिया था। नाउ यू नीड टू कैलकुलेट ऑल द 4 टाइप्स ऑफ डेफिसिट। सो पॉइंट नंबर 1 इज रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या था? रेवेन्यू एक्सपेंसेस माइनस रेवेन्यू इनकम। सो व्हाट आर द रेवेन्यू एक्सपेंसेस? ये आया ब्रैकेट वाला, राइट साइड रेवेन्यू एक्सपेंसेस देखो ऊपर 2500, 1500, 2000 एंड 1000, टोटल करेंगे तो आएगा 7000। ओके, एंड व्हाट आर द रेवेन्यू इनकम? तो देखो ये आ गई लेफ्ट साइड पे, जिसका टोटल क्या है 5000। सो 7000 माइनस 5000 विल गिव यू 2000 as what? Your revenue deficit. Government is inefficient in handling its regular expenses also. So 2000 crores government को next year arrange करने पड़ेंगे to meet its regular expenses. Okay? उसके बाद पॉइंट नंबर 2 पे जाते हैं हम, बजटरी डेफिसिट। तो उसका क्या फॉर्मूला था? टोटल एक्सपेंसेस माइनस टोटल इनकम्स। सो व्हाट आर द टोटल एक्सपेंसेस? सारे के सारे खर्चे, चाहे रेवेन्यू अकाउंट हो या कैपिटल अकाउंट हो, दोनों ही आ जाएंगे। एंड टोटल इनकम में भी सारी इनकम्स आ जाएंगी, रेवेन्यू इनकम एज वेल एज कैपिटल इनकम। ओके, सो टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं? 16000 है। अगर आप टोटल करेंगे तो 16000 आएगा, और टोटल ऑफ इनकम साइड इज हाउ मच? 12000। सो व्हाट इज द बजटरी डेफिसिट? 4000। सो गवर्नमेंट को पहले से मालूम पड़ गया कि मुझे अगर मेरे रेवेन्यू खर्चे निकालने हैं, मीट आउट करने हैं, तो 2000 करोड़ का अरेंजमेंट कहीं से करना पड़ेगा, और पूरे साल की जो कैपिटल इनकम और कैपिटल एक्सपेंसेस को भी गिन के डेफिसिट कैलकुलेट करी तो वो कितना आया? 4000 करोड़ हमें अरेंज करना पड़ेगा। सो इन शॉर्ट टोटल अगले साल 4000 करोड़ का कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, and government can plan this easily by imposing penalties and fines on the public, by raising the taxes, by borrowing from World Bank। गवर्नमेंट के जो भी रिसोर्सेज होंगे उससे ये पैसा मैनेज करना पड़ेगा। ओके, और कुछ नहीं हुआ तो लास्ट में आरबीआई तो है ही जो करेंसी नोट छाप के देगी अगेंस्ट गोल्ड रिजर्व्स एंड अगेंस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। ओके फाइन। अब पॉइंट नंबर 3, थर्ड डेफिसिट इज फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट में क्या आएगा? फॉर्मूला बजटरी डेफिसिट प्लस मार्केट बोरोइंग। तो बजटरी डेफिसिट तो ऊपर आपने कैलकुलेट किया ही है 4000, प्लस मार्केट बोरोइंग्स ये रहा लेफ्ट साइड, देखो एरो आया आया आया, यस 2000। सो 4000 प्लस 2000 इट विल गिव यू हाउ मच? 6000। ये पहले फॉर्मूला से आंसर आया, दूसरे फॉर्मूला से भी एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना, क्योंकि आपको तो भरोसा होगा नहीं। टोटल एक्सपेंसेस माइनस टोटल इनकम्स, ब्रैकेट में क्या लिखा है? एक्सक्लूडिंग मार्केट बोरोइंग। सो टोटल एक्सपेंसेस ऊपर थे पॉइंट नंबर 2 में 16000 माइनस टोटल इनकम 12000, लेकिन उसमें क्या नहीं गिनने का? मार्केट बोरोइंग नहीं गिनने का। तो 12000 में से 2000 हटा दो, कितना आएगा? 10000। तो 16000 माइनस 10000 विल गिव यू हाउ मच? 6000 अगेन। सो फिस्कल डेफिसिट को ढूंढने के दो तरीके हैं, either you add that in budgetary deficit or you take the difference between total expenses and total income, but total income में क्या exclude कर दो? market borrowings, तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट, प्राइमरी डेफिसिट, द लास्ट डेफिसिट, उसका क्या फॉर्मूला था? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो फिस्कल डेफिसिट आपका ऊपर आया था कितना?
6000 माइनस क्या करना है, इंटरेस्ट पेमेंट। अब इंटरेस्ट पेमेंट देखो, एक्सपेंस साइड कहां पे है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस में ये आया एरो वाला, कितना 1500 is the interest on loan, interest on market borrowings. Okay, so 6000 minus 1500 will give you how much, 4500. Clear with this? कोई डाउट? कोई भी डाउट है तो नंबर आपकी स्क्रीन पे है, मोबाइल आपके हाथ में है, उठाओ मोबाइल, व्हाट्सएप करो, कॉल करो फॉर आस्किंग योर डाउट्स। ओके, तो बस फिर आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।